माजी और मुस्तकबिल की फिक्र के बिना मुझे जीने दो। भीतर और बाहर के ख़तरों से क्या हासिल, मुझे जीने दो। कितने ही हो मुश्किलात, हालात हो ख़राब, मुझे जीने दो। रंजो गम के बीच सुकून के दो पल, मुझे जीने दो। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, which is organized on the occasion of International Women's Day. And this particular program we have devoted to women, the women doctors and the women cancer survivors and the warriors. And the topic that we have chosen for this program is women health, the doctor's spirit and the corona warriors' courage. So to begin with in this program, we will firstly like to talk to the doctors who have been contributing immensely towards cancer treatment. So firstly, let me introduce the two doctors who are there in this program today with us. We have Dr. Meenu Walia with us, who is a medical oncologist, who is a senior doctor working with Max Hospital, and she is a professor also because she is involved in education and research also, and creating a lot of awareness on research. So she is looking after the clinical cancer care and also the healthcare system of the Max Hospital. The other doctor that we have today with us is Dr. Aradhana Singh, who is a senior consultant, who is a gynecologist, and who is also the president of the Noida-based Gynec Society. And she has been working a lot in this particular area. She has also received so many awards. And to talk about Dr. Walia also, she has received so many awards, and the greatest recognition is that that is coming from the patient, from the cancer patients, because she has given so many lives to the people. And at the same time, I must tell you that she is also an author, and she has written a book wherein she has given tips to the cancer patients as to how they can keep their confidence and how they can fight with this dreaded disease. So to begin with the program, I would like to ask you, Dr. Walia, that what exactly you take up a case whenever some patient is coming, and the first and the foremost thing that we normally understand in any kind of disease, and particularly talking about cancer, how you diagnose if a patient is coming to us, and then how you conduct the test, etc., to verify that what exactly is the disease, at what stage the disease is. So particularly talking about the diagnosis and the detection part, if you can tell us something on that. So, whenever an Indian patient comes to us, so what we have to understand is that no patient directly goes to an oncologist in our country. Majority of the times, we have our first contacts. That is why we have a very senior gynecologist with us on this forum today. Normally क्या होता है कि they are the first, their first contact with the patient, who will find that there is a lump in the breast or there is something else, that this can be cancer. And at that point, these patients are generally referred either by a gynecologist or a physician or a surgeon to a tertiary healthcare center, to an oncologist. अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास कहीं भी कैंसर की अगर कोई गांठ है या कुछ भी है, हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस, क्योंकि हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. तो आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि ये जो गांठ है या जो भी अल्सर है, जिस फॉर्म में भी कैंसर है, वेदर दिस इज़ बिकॉज ऑफ कैंसर और इट इज़ अ बिनाइन डिजीज़. So how do you confirm diagnosis? You confirm diagnosis, one is your clinical examination, second you confirm diagnosis with a battery of tests. इन टेस्ट में आपका जनरली हिस्टोपैथोलॉजी, चाहे हम उसे FNAC बोलें या बायोप्सी बोलें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप कैंसर के जो भी गांठ है उससे कुछ सेल्स लेते हो, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, एंड देन यू डिटेक्ट कि वेदर फर्स्ट यू कंफर्म
this is cancerous or this is not benign, and if at all it is cancer, it is very, very important in today's date. Just saying cancer is not enough, because it is not one cancer. There are more than 200 different types of cancers. So क्या है कि किस टाइप का कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है, because cancers can be also of many types and the treatment of cancer depends a lot on what type of cancer it is. The second thing that also comes, whereby you are confirming the diagnosis, you now next want to know the stage of the disease, because with every cancer the stage of the disease at which it is detected, जब patient आपके पास आया है, it can be a different stage, and on every stage the treatment is very, very different. For stage of the disease again you have to conduct certain radiological tests, जिसमें बहुत commonly हम लोग PET CT करते हैं, एक PET scan करते हैं या CT scan करते हैं, मतलब basic tests हैं जो define होते हैं कि आप ये test करते हो और उससे पता लगाते हो कि वो बीमारी है जो है कैंसर है वो कौन सी स्टेज में है. So confirmation of diagnosis and staging and the type of cancer and the stage of the disease, these are three things which are foremost important and which should be done in every patient. लेकिन डॉक्टर वालिया, जैसे कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पे और हमारा फोकस महिलाओं के ऊपर है, तो जैसे भी आपने कहा कि कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स एग्जिस्ट, बट इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट वीमेन, एज वी नॉर्मली अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ ब्रेस्ट कैंसर, देन दिस ओवेरियन कैंसर एंड ऑल. सो कैन यू टेल अस स्पेसिफिकली अबाउट रिगार्डिंग वीमेन एज टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैंसर व्हिच एग्जिस्ट इन वीमेन? So what we have to understand is there are certain cancers which are unique to women, which will be present mainly in the woman or only in the woman, but there are many other cancers also which will be present whether you are a male or a female. For example, stomach cancer can be present in anybody. Similarly, pancreatic cancer can be present in anybody. Head and neck cancers can be present in anybody, although we know that certain cancers will be more in men and certain cancers will be more in females. So if we go, what are the most frequent cancers that we see in our Indian women? The most common cancer at present, the most common cancer now which has really come up across the world as the commonest cancer is the breast cancer, which has actually become the #1 cancer, both men and women put together. So much is the incidence of this cancer now. All like 2020 saw this. 2020 breast cancer scaled to #1 cancer all over the world. Apart from breast cancer, the various other cancers that we see commonly in the women are the ovarian cancers, the uterine cancer, cervical cancer. Cervical is बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जो cervix का कैंसर कहा जाता है, cervical cancer. And then yes, lung cancer can be seen in women also, because their patterns are also changing, they are also becoming smokers nowadays, and even lung cancer is seen in lot of non-smokers also. Similarly, lung cancer, head and neck cancers, colorectal cancers, which are not what I will say, which are not sex, doesn't have to be limited by any particular sex. So these are the common cancers that we see in our country. So moving on to Dr. Aradhana Singh, what can you tell us, since you are a gynecologist and you deal at the early stage of cancers at the level of the detection, and as I have understood from Dr. Walia, then you are the one that you detect and then you forward it to an oncologist. So what can you tell us as far as the detection of the disease is concerned? Okay. So, first of all, when patient comes to us, they usually come with the breast problems, either breast lump, or they are noticing for the few days there is some discharge, और they come for the cervical. जैसे कि मैडम ने बताया कि cervical cancer जो यूट्रस के माउथ का कैंसर होता है, कई बार लोग इसको मिसलीड भी करते हैं, वो cervix ये वाला समझते हैं कि cervical cancer, which is not there. Cervical cancer is the cervix, we call the mouth of the uterus. The lower part of the uterus, we call it cervix, and that is what we are talking about, the cervical cancer. So mostly discharge, irritation, कई बारी अपने friends से पढ़ के सुन के पड़ोस से भी घबरा के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मुझे बहुत डिस्चार्ज है डॉक्टर, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया. एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब भी ब्रेस्ट लम्प से. एंड वेन एवर वी टॉक टू देम, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, देन वी एग्जामिन. Like breast lump hai, तो it may not be, they may just be feeling the normal breast sometimes, you know, and sometimes of course it is the rounded lesion. So there are certain criteria कि वो cancerous है कि नहीं. So normally जो clinical examination से हम उसको
रूल आउट कर लेते हैं कि वेदर दे आर मोबाइल, इफ़ दे आर मोबाइल लम्प दैट मीन्स दे आर बिनाइन लम्प, इफ़ दे आर फिक्स्ड हार्ड. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जैसे कि ये कोविड टाइम में जैसे मैडम ने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे गया. आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई क्लोज you know the patients who have just ignored that breast lump during COVID time. They have not gone to the doctors and उस वजह से वो breast lump बढ़ गया. तो ये इसी वजह से probably COVID में जो ignorance हुई है to avoid कि कैसे जाएं hospital, ये बढ़ा है ब्रेस्ट का तो कैंसर. डॉक्टर वालिया, मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगा कि हम कैसे अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पे आता है. जैसे डॉक्टर आराधना सिंह ने भी बताया कि लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, लेकिन वो बहुत क्लैरिटी नहीं होती. तो क्या आपको लगता है कि कुछ अवेयरनेस अगर हम इस बारे में क्रिएट करें, पीपल विल बी मोर अलर्ट ऑन दिस एंड बिफोर द मेजर प्रॉब्लम लाइक एज वी ऑल विटनेस दैट व्हेन इट्स डिटेक्टेड द स्टेज इज ऑलरेडी at such that it will be difficult, the survival becomes difficult. So from that perspective, can you suggest something कि awareness के लिए हम इस दिशा में और क्या कर सकते हैं? और इसके साथ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि अगर फैमिली में एक व्यक्ति को कैंसर है तो उससे वो दूसरे को या तीसरे को हो सकता है? क्या इस तरह का भी कुछ है? So I'll answer your second question first. Regarding family history of cancer. So, yes, family history of cancer is important. Why? Because some of the cancers can be inherited also, can be hereditary also. And what are those cancers? For example, breast cancer, ovarian cancer, even pancreatic cancer, prostate cancer. There are certain cancers which can run in the families, colorectal also. But what we have to understand that it is only 5 to 10% of the cancers which are hereditary in nature. That means the rest 90% of the cancers will happen in the absence of any family history of cancer. So, why I am emphasizing this again and again is, like, many times we feel like this is an important part of your first question about awareness. Many times people feel कि cancer hereditary है, so what they feel is कि मेरी family में तो किसी को है ही नहीं. So, this is something that is going to happen, वो पड़ोसी को होगा, मतलब वो मुझे नहीं हो सकता. मतलब nobody becomes, they always feel कि family में ही cancer होएगा. So much so, I mean, I think this is the right forum because we have so many young people here. I'll share an incident that had happened with me in the OPD, and that is something, I mean, I had a young boy who came to me around 28-year-old. And in one of my OPDs, and the only thing, the first thought was, it might be, generally बच्चे आते हैं with taking reports of their parents and they want to have a second opinion या opinion लेने के लिए. कई बार parents कहीं और हैं, उनके मुंबई में हैं, बैंगलोर में हैं, kids are doing service here, so they want to come and they want to know कि क्या treatment होना है. So I was very surprised because when I sat with him and कि घर में किसको है या क्या opinion लेना, he was not carrying any reports. The only thing he was carrying is the girl with whom he was going to get married. That means his fiancée, उसकी mother को recently was diagnosed with breast cancer. So that was the time it became very shocking. I mean, all the reason of his consultation, the only reason why he had come to me is he wanted to know, it was basically कि she has been diagnosed with cancer. So how much is the risk in going to be in the daughter? No, but then Dr. Walia, this is very much real. I also have come across with so many cases wherever जहाँ पे शादी करने से पहले इंश्योर कर लेते हैं कि अगर फैमिली में किसी को है तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. So that is exactly what I wanted to say is कि yes, family history is important. अगर घर में मदर को, मासी को, नानी को, किसी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर हुआ है तो फैमिली में कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है. But that does not mean that if there is no family history of cancer, you are immune to cancer. We do see, I mean, we do see very frequently. So again, I come back to जो हमारे 100 cases होंगे breast के, तो I'll say it will be only in 5 to 10% जिसमें family history है. That means in the rest 90 people breast cancer happened even in the absence of family history. So that should not be the message. So it is something like कि अगर diabetes है, अगर family में diabetes है तो yes, the risk is slightly higher in the younger generation. Hypertension है तो risk is slightly higher in the younger generation. But that does not mean क्योंकि अगर हमारा lifestyle वैसा है तो we will also be, irrespective of family history of diabetes or hypertension, we can still be prone to this. And
आपका जो पहला सवाल which जी, is जी, I think awareness very को very लेकर, जी। important is regarding awareness. Awareness is the key to early detection. It is not that cancer is detected only in our country. What I will say is the stats are rather worse for the western countries. For example, in India in present date we say that for breast cancer 1 in every 25 women has a risk of developing breast cancer. In the western world 1 in every 8 women has a risk of developing breast cancer. So, the numbers are much more better in the western world, in America, in UK and all these countries than in our country, much more worse rather, the higher numbers, but still you will see the results might be much better in those countries compared to our country. Why? Because our stats says in India out of every 2 women who are detected with breast cancer, one of them will not be there, 50% of them do not pass beyond 1 year. And why is it? Because the stage is already advanced, and that is where the awareness comes into role. In the western world, there is a lot of focus on preventive health. So, any lady beyond the age of 40, whether they feel a lump, they do not feel a lump, they will walk up to their clinic, and as part of a normal screening program, they will get their mammography done. But in our country, even the educated women, like Dr. Aradhana just said, during COVID, we saw so many people breast में lump है, पर 8 महीने से घर में, कोविड में घर में है, lump feel हो रहा है, क्यों नहीं गए? क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, दर्द नहीं था, है ना? एंड कोविड से ज़्यादा डर था कि अस्पताल जाएंगे तो वो होएगा, एंड which would have been stage 1, now we are seeing in stage 3 or stage 4. So, awareness is definitely the key to early detection. Ji. So, Dr. Aradhana, I would like to ask you at this point, focusing on this, the diagnosis, the detection and the awareness part, if you can add something to whatever Dr. Walia said. So, probably that is why we are doing this program, to make people, to make our young generation aware of the things. So, like the one thing breast madam has said, and about the pap smear. So, has anybody heard about pap smear here? That is also one thing. So, cervical cancer की जब हम बात करें, एक छोटा सा टेस्ट होता है, मुश्किल से उसमें हमें 5 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं करने में, 5 to 10 सेकेंड्स में हम वो टेस्ट कर लेते हैं, वो अवेयरनेस ही नहीं है उस टेस्ट के बारे में. एंड मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे पढ़े हुए पॉपुलेशन हमारी जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि पैप स्मीयर क्या होता है. सो मोर एंड मोर अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग कि एक सिंपल सा अगर पैप स्मीयर टेस्ट हर 3 साल में आप 21 साल की उम्र के बाद महिलाएं या 30 साल के बाद कराते जाएं, तो वो बहुत अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है. एंड डू इट फॉर एज अ रूटीन. ये नहीं सोचना है कि मैं अब नहीं कल नहीं, और आप कराएं और अपने 10 फ्रेंड्स को करवाएं कि आप अपना पैप स्मीयर. सो इस तरह से हमें एक ने अगर कोई चीज़ पता करी है तो वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस टू अदर्स, एंड आई थिंक द मीडिया हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रोल इन दैट. एंड ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज द बिगेस्ट की टू डिटेक्ट एनी ब्रेस्ट लम्प अर्ली. There are a lot of YouTube videos and education on the net about the self breast examination, which every lady should do it at least every month, at least. So, Dr. Walia, जैसे आप you are active at so many levels for creating awareness. So, can you tell us कि कोई institutional level पे means कि policy makers की तरफ से भी कुछ ऐसा कोई institution है, कोई ऐसा awareness campaign है, something like that which is done on a more organized level to create that kind of awareness across. I mean, not only in the urban areas, in rural areas also, so that more and more women come to know as to what all is to be done and what all precautions need to be taken so that this disease does not occur. So, I think that is the sad story. There is no organized campaign being run in an organized fashion to make the people aware. So, there are tidbits, there are people like me, you and me, people like Dr. Aradhana, there are tidbits of people who are just trying to put in their efforts, and because those efforts are not organized, that is why it does not become a big movement. The way I was really impressed the time at the time when we were having COVID, and you will have a corona meter running by the side of your TV. And you will have, everybody was so abreast with how many COVID cases were detected yesterday and how many COVID deaths, and the number of cancer cases is no less.
But even if we start projecting ki these are the kind of cancer cases that are detected, or even for so many other things also, like we are sitting in a metro today, they are all educated people, you cannot expect a more educated crowd than this. I do not know how many of you have also, taking further from Dr. Aradhana only, how many of you have you heard about cervical cancer vaccine? Now, there is a vaccine for cancer, and how many of us have got our daughters, our sisters, our kids vaccinated for cancer? So, शहरों में भी लोगों को ये मालूम नहीं है. So, there yes, if we can join hands, it can be a more organized, but अभी जो है वो fragments में ही होएगा, क्योंकि जब लोग एक छोटे institution के level पे होंगे, एक छोटे level पे करी जाएगी बातचीत, तो वो fragments में होंगे. Yes, हो सकता है कि हम शायद कैंसर के कोरोना मीटर की तरह कैंसर मीटर नहीं चलाना चाहते. We don't want have a negative this thing. We don't want people to be afraid of it, but then something like cervical cancer vaccine, we can have campaigns for that. We can actually show this in the same way, and plus I feel a lot has to be expected. I mean, we need to ask more questions to have the so called Bollywood heroes. I mean, we give them so much importance. We really, there is so much of fan following, but we see them endorsing tobacco like anything. I mean, that's not done. That is something that should be condemned openly. That there is no कोई ऐसा दर्द नहीं है ना for कि why you have to come out and endorse products which we all know is not good for our young generation. So, they have to, at least if they come and endorse things like cervical cancer vaccine, they endorse a healthy behavior or non-smoking behavior that will have more impact on the younger population. यहाँ पे मैं डॉक्टर आराधना आपसे पूछना चाहूँगा, सिंस महिलाएं आपके पास आती हैं अपनी गायनिक प्रॉब्लम्स को लेके, तो उस स्टेज पे यू सिंपली एड्रेस दैट प्रॉब्लम और यू ऑन योर ओन, और सिंस यू आर ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ दिस गायनिक सोसाइटी इन नोएडा, so at the level of other doctors, your fellow colleagues and all, whether you do something deliberately to address this problem, that any such thing should be diagnosed or should be talked about, should be suggested that such tests should be conducted, so that if there is a possibility of cancer, so that is detected and taken care of at an early stage. Yeah, definitely. So we many times arrange the camps, awareness talks in different little groups, and we try to educate people. Sometimes we go to remote areas also to take just pap smears. When we were in medical college, we used to go to the the remote areas of India where there's nothing, forget about pap smear. So we used to go there and we used to take the pap smears of those patients and collect the samples, bring them, and then the follow up. And here also from our hospital also, many times we go to the different corporate offices to educate girls and the female employees and take the pap smears of them and just do mammographies, and different mass health check campaigns are also being done, and I think madam is also doing a lot of so that way we involve the gynecologist. And whenever a patient comes to me, suppose one patient comes to me with any this thing, and I try to educate her about the pap smear, and I tell her that I am taking your pap smear, go and tell your 10 friends that this is the pap smear and you should get it done every 3 yearly up to the age of 65. So from 30 to 65 years, every 3 yearly pap smear should be done for each and every lady. Yeah. So, Dr. Walia, I was reading somewhere while I was going through the literature related to cancer, that if we look into the overall figures in the world, there are more male patients than female patients, and there are 18.1 million patients overall globally, referring to some statistics of 2021, out of which 9.3 are men and 9.3 million are men and 8.8 million are women. Why? I mean, this is simply incidental, or there is some reason behind this? This is the global statistics, and what is more shocking will be that in our country the pattern is reverse. So, all over the world more men than women have cancer. In our country it is more women than men who have cancer, and I guess needless to say, Indian women, lot many factors: ignorance, illiteracy,
neglecting self and जो family first attitude, सब कुछ important है, बच्चे important है, husband important है, in-laws important है, सब कुछ important है, but my own health always takes a back seat. And here I wanted to make a point going further from what Dr. Aradhana said, that apart from the tidbits, the efforts which we as doctors do, I must say and rather must compliment, जैसे होता है ना, only the wearer knows that the shoe pinches. And in this journey of ours, I have been very fortunate that some of my patients have become the biggest ambassadors of doing something for the community. So, I guess you will be talking to them also, like Sneha Rotre. So, all I can say is she started an NGO, Gramin Sneh Foundation, only for the sake of this, after her own journey with this cancer, and while she was having her chemotherapy, during that phase also she will go to remote villages in Bihar and do cancer awareness camps. The same is for Saima. I mean, she has been a caregiver. She herself has seen her own mother going at such close quarters that today she became our like the जो हमने एक मुहिम शुरू करी है आशाएं करके, तो Saima and Saheli are the main backbones of this. Why? Because she said that when I and when my mother went through all this, there were hardly any people who would know about it, and we were like nahi samajh aata tha. So, let's make the journey of others easier, let's spread awareness. So, I must compliment all these people because they have gone through it, they come out and they make so much of efforts for the society that it is very, I mean, it is commendable. Completely agree with you. So, Dr. Walia, here we will stop for a little bit in this segment of program wherein I was talking to you, Dr. Walia and Dr. Aradhana Singh. Now, as we know that there are cancer warriors also in this audience, and also the caregiver is also there. So, we will start talking to them, having their opinion, and then we will try to connect to you again. So, in this second segment of the program, as I already told you all, we will be moving on to talking to the cancer warriors and the cancer caregiver. And as Dr. Meenu Walia referred to this already, that this whole fight against cancer is not only confined to doctors, but then there are other people who are contributing to this whole fight. So firstly, I would like to talk to Saima Parvez, who is working with Indian Institute of Mass Communication and who is also a research scholar in MIT University. And she has suffered a lot because of cancer, because both of her parents were diagnosed cancer, and finally they succumbed to that disease. So she has been working hard as far as the caregiving is concerned, and she has done so much and she has learned so much about cancer. And even today, as Dr. Walia referred to the campaign that she is launching, she is a major contributor to that whole campaign. So I would like to ask you, Saima, what all can you tell us about your whole story regarding the detection of cancer among your parents, and then how did you deal with that? What all you did to provide whatever care was desirable to them? थैंक यू सर। कैंसर से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है और अब नया हो गया है जो जारी रहेगा। मेरे पापा को कैंसर हुआ जब मैं 4 साल की थी, व्हेन आई वाज 4 years old, एंड आफ्टर दैट आई सॉ माय मदर स्ट्रगल एज अ केयर गिवर टू माय फादर। आई वाज वेरी स्मॉल, मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, क्या होने वाला है। मेरे पापा को शायद पता था, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और उन्हें समझाया कि ठीक है ऐसा हो गया है बट हमें लड़ना है। तो ही फॉट विद इट, माई मदर फॉट अलॉन्ग। I was a small child, I was just witnessing the events unfolding in front of me. I couldn't do anything. I lost my father since he was diagnosed at a very late stage. जैसा मैम ने अभी बताया, अवेयरनेस नहीं थी। जब तक उनको डायग्नोसिस हुआ, जब तक कैंसर फैल चुका था। एज अ स्मॉल चाइल्ड मुझे सिर्फ कैंसर एक ज़ोडिएक साइन के बारे में पता था कि एक ज़ोडिएक साइन होता है जिसका नाम है कैंसर।
उसके अलावा मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि कैंसर से मेरी दुनिया बदल जाएगी या मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। आई एम द ओनली चाइल्ड, आई डोंट हैव सिबलिंग्स। तो पापा के जाने के बाद मेरी दुनिया मेरी माँ थी। तो मेरी मम्मी तक ही सीमित थी। उनको जब कैंसर डायग्नोस हुआ तो मुझे नहीं, आई थॉट ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ गलत है। आई वेंट टू डॉक्टर वालिया एंड आई आस्क्ड, मैम ठीक हो जाएंगी? मैम ने कहा, मैं ये 3 शब्द बार बार 100 बार रिपीट कर सकती हूँ। मैम ने बोला क्यों नहीं होंगी। उनका क्यों नहीं होंगी से मुझे इतनी हिम्मत मिली। आई सेड अब हम लड़ लेंगे, अब देखा जाएगा जो होगा। एंड माई मॉम वॉज सच अ पॉजिटिव पर्सन, सच अ लाइवली पर्सन, हमेशा मुस्कुराती रही। बोली कैंसर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है। तब मुझे समझ आया द पावर ऑफ विल पावर। आई अंडरस्टूड कि विल पावर, हौसला, हिम्मत क्या होता है, क्योंकि उस समय मैं उस मुकाम पे भी थी, उस मेच्योरिटी लेवल पे भी थी दैट आई कुड अंडरस्टैंड कैंसर बेटर। तो अब मैं बार बार हर किसी से ये बोलती हूँ कि कैंसर पेशेंट जो है एक नॉर्मल इंसान है, केवल एक बीमारी है जिससे वो लड़ रहा है। आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसमें कैसे उसको, उसके लिए उसकी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। सिंपल है, उससे एम्पथाइज करिए, उससे बात करिए, उससे रेगुलरली जैसे आप चिट चैट करते हैं, जैसे आप गॉसिपिंग करते हैं। डोंट मेक हिम फील आउट ऑफ द बॉक्स, डोंट मेक हिम फील आउट ऑफ द प्लेस जस्ट बिकॉज उसे एक बीमारी हुई है। दिस इज़ नॉट डन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इंसान जिसे कैंसर हुआ है, अगर उसके अंदर विल पावर है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रीटमेंट दैट इज़ गोइंग ऑन, आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। माई मदर वॉज ऑन बाईपैप, कोविड हुआ था एंड आई लॉस्ट माई मॉम टू कोविड। शी फॉट कैंसर एंड उन्होंने कैंसर को बहुत पहले हरा दिया था। आई लॉस्ट हर टू कोविड, नॉट टू कैंसर। तो शी वॉज ऑन बाईपैप मशीन एंड हर लास्ट वीडियो कॉल विद मी वॉज लाइक दिस। एंड उनका FB पे पोस्ट था कि मुझे कोविड हो गया है, मैं ICU में हूँ, मेरे लिए दुआ करें। शी वॉज सो एक्टिव ऑन फेसबुक, शी वॉज सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। कीमो चढ़ रही है, शी इज़ जस्ट शेयरिंग हर पिक्स ऑन सोशल मीडिया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें इंस्पायर करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। जो आपके कमेंट्स आते हैं कमेंट्स बॉक्स में, अरे आप कर लेंगी, आप जीत जाएंगी, कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए, ये 4 कमेंट्स आप नहीं समझते कैंसर सर्वाइवर के लिए दुनिया बदल सकते हैं, उसकी पूरी मानसिकता बदल सकते हैं। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है एंड आई विल कंटिन्यू दिस जर्नी बिकॉज़ मैं एक बहुत ही हिम्मत वाली माँ की बेटी हूँ, जिसने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि तूफ़ान से मेरा कोई याराना न था, हर मोड़ पर मिलेंगे ऐसा कोई इरादा भी न था, मगर अब तूफ़ान में भी मुस्कुराना सीख गए हैं, आंधियों में आशा के दिए जलाना सीख गए हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में मेरे कोई गम नहीं, गम अपने पुराने कुछ कम भी नहीं, मगर फिर भी इस गमों के अंधेरे में आशाओं की मुस्कुराहट को जलाएंगे हम, आंधियों में भी आशाओं के दियों को जलाएंगे हम। तो दिस इज़ माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि अंधेरा कितना भी हो, लेकिन आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और मैं अपनी माँ की मुस्कुराहट से इस अंधेरे को कम करूँगी और अब मैम के एंड सबके सपोर्ट से इस मुहिम को आगे चलाती रहूँगी। एंड एज यू यंग स्टूडेंट्स, budding people, whenever you see a cancer patient or somebody who's there in your life suffering from cancer, he is just a patient, simply living with a disease. आपकी उनको एक हग, एक पास जाकर ये कहना कुछ नहीं होगा, you'll be fine, you'll be all right. मेरी माँ जाके लोगों से कहती थी, पता है I used to go to the OPDs of ma'am, तो I'm a very lean person and my mom was healthy. तो लोग पूछते थे कैंसर किसे हुआ है, मैंने कहा मम्मी यार देखो लोग बोल रहे हैं कि मुझे कैंसर हुआ है या आपको कैंसर हुआ है, तो मेरी माँ हंसती थी। तो वो हौसला, वो हिम्मत मेरे पुराने जेनेटिक है। मैं एकदम लोहे वाली माँ और बाप की बेटी हूँ। तो मैं आप सबसे यही बोलती हूँ कि whenever you see a cancer patient, try and be a little empathetic towards them. वो सिंपैथी नहीं चाहते हैं, कोई भी कैंसर पेशेंट सिंपैथी नहीं चाहता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। एक बीमारी है जिससे वो ग्रस्त है, वो केवल एक बीमारी है। वो आपसे सिर्फ एम्पैथी चाहता है, आपकी मुस्कुराहट चाहता है, आपका हाथ चाहता है और आपके 2 शब्द चाहता है जो आप उसके कान में या उसके पास जाके कहेंगे, हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा, बीमारी है, आप लड़िए, हम लड़ रहे हैं, साथ में मिलकर लड़ेंगे। So this is my story of a caregiver. Thank you. Thank you, Saima. So moving on, we will be talking to a cancer warrior, Sneha.
Rautre, and she has defeated the cancer, and not only that, that after that she has been working as far as creating awareness is concerned, the topic which we were talking to Dr. Walia as well as to how the awareness can be created. And Sneha has set up an organization for this purpose, which is Grameen Sneha Foundation. And with the help of all like-minded people, she is running this organization to create awareness. And otherwise, she is a professional, and she has been working very good in her professional life as well. But as a campaign, as a social service, because now she has taken it up as a social service, and she is working in this area. So, Sneha, we would like to know firstly your fight with the disease, with cancer, and how you came out, your spirit, your courage, that we would like to know. And also now what all you are doing for creating awareness on cancer. हेलो एवरीवन। मैं बाय प्रोफेशन एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और जब मैं कैंसर जर्नी से स्टार्ट करती हूँ, जब मुझे 32 इयर्स था, मतलब इन 2014 आई वाज डायग्नोस्ड विथ कैंसर, but I am very much fortunate that I diagnosed in a very early stage, because उतना मैं अवर थी और उतना मैं सशक्त थी, मतलब हेल्थ एजुकेशन मुझे था कि कोई भी लंप अगर कहीं पे भी ब्रेस्ट कैंसर में दिखाई दे, ब्रेस्ट में या फिर तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग दैट टाइम माय हस्बैंड पोस्टेड थे पटना में, और पटना जैसे जगह में मैं इमीडिएटली मैं गई और वहाँ पर डायग्नोस्ड हुआ कैंसर स्टेज 1A। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एंड थिंग इज़ डैट ये कहना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट में फॉलो किया डॉक्टर मीनू जो कि आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सर्वेलेंस में बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फॉलोड बाय केमोथेरेपी, रेडिएशन, देन सर्जरी। फिर after 2 years continue this fighting with the disease, then पूरा मेरा जो बॉडी है कैंसर फ्री हो गया। उसके बाद मैं फॉलोअप ट्रीटमेंट में रही। तो इन बिटवीन ये जो जर्नी था, इसमें मुझे इतना पता चला कि कैंसर एक क्यूरेबल डिजीज़ है और अच्छी डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि कैंसर अलर्ट करती है बॉडी में, एकदम से नहीं होता है। तो इसको हम अगर बीट करना चाहेंगे, मतलब प्रिकॉशन केयर करेंगे, जैसे अवेयरनेस इतना सशक्त हो जाए, इतना मजबूत हो जाए हेल्थ एजुकेशन में, ताकि अर्ली से अर्ली डिटेक्शन हो और इट्स कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ इट डिटेक्ट्स इन अर्ली स्टेज, जो कि हमारी देश में लेट से डिटेक्ट होते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर डेथ रेट। तो देन आई स्टार्टेड ए कैंपेन नेम हौसला फाइट अगेंस्ट कैंसर अंडर द एजिस ऑफ ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन। इस हौसला के अंतर्गत हम लोग क्या करते थे कि जैसे अवेयरनेस देते थे पैन इंडिया लेवल पे, रूरल एरिया में, देन अर्बन एरिया में कैंसर अवेयरनेस कैंप्स करना, स्क्रीनिंग कैंप करना, लोगों को जागरूक करना, और शहरों एरिया में मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट फॉर फंड रेजिंग शो करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना फॉर द BPL कार्ड होल्डर पीपल। और उसके अलावा सेंसिटाइज द सोसाइटी, हम लोग ब्यूटी बियॉन्ड कैंसर करके एक प्रोग्राम करते हैं टू सेंसिटाइज द सोसाइटी थ्रू द कैंसर सर्वाइवर। हम फैशन शो कराते हैं ताकि ये जो स्टिग्मा है कैंसर के बाद कोई लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ बियॉन्ड कैंसर, ये मैसेज देना चाहते हैं। इट्स नॉट ए नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट शो, इट्स शो, इट्स ए फैशन शो जिसमें करेज, स्ट्रेंथ और जो महिला जो डिजीज़ से जीत के आके एक अच्छा ज़िंदगी, क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, उनको मैं उनके बारे में बता के लोगों को समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज स्प्रेड करते हैं। तो ये सारा कैंपेन है। तो
मुझे जब डिजीज़ हुआ था मैं ये सोच रही थी कि व्हाई मी, जो कि सबको ये मतलब माइंड में आती है, ये मुझे क्यों हुआ? क्योंकि इतना अच्छा लाइफ और मेरा करियर उस टाइम में बूम में था और 4 साल की बेटी थी और सेकंड इशू के लिए मैं ट्राई कर रही थी। मैं सोची थी कि सेकंड इशू अभी मैं करूँगी। उसी टाइम में मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हुआ और मैं एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं कि डर नहीं लग रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। तो कैसे मैं ओवरकम हुई? तो फर्स्ट थिंग कि मैं पहले खूब पढ़ाई की इसके बारे में, कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, फिर कैसे ये होता है, क्या-क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले सही डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देन फैमिली सपोर्ट और उसके बाद जो थॉट, जो माइंड को हम फीड करेंगे और जो विल पावर लाएंगे, चाहे वो आप इसको मेडिटेशन कहो, योगा कहो या पूजा पाठ, व्हाटएवर नाम दे सकते हैं। थ्रू दिस वी कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड गॉड। एक बिलीव होता है स्ट्रांगली, हाँ हौसला है और ये एक सिंपल डिजीज है जैसे डायबिटिक वगैरह 7 क्रॉनिक डिजीजेस है जैसे दुनिया में, वैसे ये भी एक डिजीज है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये चीज़ जो और अच्छा खाना, गुड एक्सरसाइज, देन ऑर्गेनिक फूड खाना, अच्छा खाना खाना और अच्छा थॉट्स भी माइंड में लाना और फैमिली सपोर्ट, ये और मेडिसिन और डॉक्टर का ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती है इस कैंसर डिजीज से लड़ने के लिए और उसको जीत के मतलब आगे ज़िंदगी जीने के लिए। ये मैंने सीखा। फिर और एक चीज़ क्या मैंने सीखा, जब मैं गाँव जाती थी, गाँव में मैंने मेरा फर्स्ट जो कैंप था उसमें मैंने देखा था कि एक लेडी है जो कि उसको स्टेज 4 के हम लोग कैंप लगाए थे वहाँ पर। देन आई थॉट गरीब लोगों के, जो गरीब लोग होते हैं पुअर पीपल के लिए, उनके लिए कैंप लगाए थे। तो वहाँ पर एक लेडी आई थी जो कि स्टेज 4, मुझे लगता है स्टेज 4 कैंसर हो चुका था, 4-5 बड़े बड़े लंप। और वो आई थी कि वो इसीलिए आई थी कि फ्री में चेकअप हो रही है तो मैं आके दिखा दूँ। तो उसका ना फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना वो लिटरेट थी, ना उसका हस्बैंड साथ दे रहे थे, ना ही उसको पता था कि मुझे कैंसर हुआ है। दैट लेडी चेंज्ड माय माइंड दैट आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं लिटरेट हूँ, नॉट लिटरेट, हाईली क्वालिफाइड हूँ और फैमिली है और इस डिजीज़ से लड़ने के लिए शक्ति है, हौसला है, इतना आइडियाज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन। तो नाउ इट्स टाइम कि इस टाइप की लेडीज़ जो हैं इनको कैसे कम से कम इस तरह से लेडी कैंप में आए। तो ये मुहिम में हमने स्टार्ट किया, हौसला फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो निश्चित रूप से स्नेहा, आप बधाई की पात्र हैं कि आप इस तरह का कैंपेन चला रही हैं और इस तरह की स्पिरिट आपके पास है, इस तरह का हौसला आपके पास है, जो आप औरों को आगे हौसला देने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे मैं डॉक्टर वालिया आपसे को मुखातिब होना चाहूँगा। जो अभी साइमा ने कहा और जो अभी स्नेहा ने कहा और जो मैंने भी जैसे आपसे पहले सवाल किया था अवेयरनेस के बारे में, तो अवेयरनेस इज़ वन, एंड देन how can we support any such patient mentally, emotionally, then through treatment also, if anybody is at the third or the fourth stage, then what all support is desired. So उसके बारे में चूंकि ये लोग आपके साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, can you add on something whatever they have said? सो व्हाट आई वांटेड टू से इज़ कि जो कैंसर पेशेंट की जर्नी होती है ना, वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट जर्नी है और एक डिफरेंट किस्म की जर्नी है और जिसमें सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप। सो व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ, जैसे हम आशाएं की बात कर रहे थे, तो वी वर ऑल पुटिंग आवर थॉट्स टुगेदर कि क्या चाहिए मरीज़ को, जब मरीज़ आता है तो क्या चाहिए। जैसे हमने उसके जो हर एपिसोड पे पेशेंट से ही पूछना शुरू करा कि आप क्या सुनना चाहते हो, क्या चाहते हो हमसे। सो देन वी केम अप विथ सो मेनी थिंग्स। जैसे अब हमारा जो नया एपिसोड, जो नेक्स्ट एपिसोड है, दैट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट फीलिंग्स एंड कैंसर। सो व्हाट वाज दैट केम आउट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस जो पेशेंट कहते हैं, देखो मैम, हम जाते हैं कहीं भी जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं या आई मीन फैमिली होती है, तो द कन्वर्सेशन इज़ वेरी शॉर्ट
which has to be, मतलब इतना लंबी कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, एंड क्रिस्प कि ये करा लो, ये कर लो, ये टेस्ट होएगा, ये इलाज होएगा, ये खाना है, ये नहीं खाना, एंड प्लस द विद द फैमिली ऑल्सो, है ना. बट नो बडी एड्रेसेस कि what is going behind the cancer patient, in the cancer patient's mind, कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है. एक जरा ना एक तूफान है आसपास, अटेंडेंट्स भी हैं, कोशिश करते हैं कि चुप 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 हश 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 हो के कि ज़्यादा बात ना करें, उनके सामने ना बात करें. और एक जैसे तो ना उसको कोई धक्का दिया जा रहा है, अगर बहुत अच्छी फैमिली सपोर्ट भी है, एक धक्का दिया जा रहा है, ये करेंगे, बायोप्सी करेंगे, पेट करेंगे, ये कीमो चढ़ाएंगे, ये करेंगे, एंड इट इज़ टू एंड फ्रो हॉस्पिटल एंड एक मैड हाउस. But does anybody sit down and talk to them and ask them कि दिमाग में क्या चल रहा है? Because this is feelings which I feel is the most important thing and the most neglected thing. Somebody sitting with them and telling them and talking to them कि what it is all about. In the Western world, fortunately, क्या I feel people are more educated, they are more aware. So when a disease like this comes, they themselves come forward, they want to know ki doctor what is my prognosis, what are my chances, and they plan accordingly. But here in our country what happens is the family will generally come and say कि इनको मत बताना, इनको मत बोलना. पेशेंट को जनरली हम कमरे के बाहर निकाल देते हैं, एंड समटाइम्स ही इज़ एन एजुकेटेड गाय, ही वांट्स टू नो कि उसको आगे कैसे प्लान करना है. ही माइट बी द ओनली द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली. He might have to see कि उसके आगे बच्चियों की शादी होनी है, क्या होना है. So this is just one aspect of it. Apart from that, there are various other aspects. The financial training. People don't know what is financial training, how to manage. People don't even know. जैसे अभी बात करें कि funds can be raised. There are many people who want to come voluntarily, want to come forward and help people out. सिर्फ वो इसलिए नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि उनके जो फंड्स हैं दे आर गोइंग टू द राइट प्लेस. सो दे आर वेज वी कैन रेज फंड्स, दे आर वेज वी कैन ट्रीट पीपल, दे आर वेज यू कैन क्रिएट होप, एंड देर आर वेज दैट यू कैन क्रिएट education about fighting the disease. So this all has to come up at a much bigger level, and वही है बूंद बूंद से. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सामूहिक प्रयास से ही हो सकता है. सब लोग अगर मिल के कोशिश करें तो निश्चित रूप से कम अवेयरनेस क्रिएट करने में सफलता मिल सकती है. और अवेयरनेस होगा तो हम कहीं ना कहीं वो स्पिरिट पैदा कर पाएंगे, सोसाइटी में समझ भी पैदा कर पाएंगे. जैसे कि आपने सोशल स्टिग्मा की बात की, जो एक बहुत बड़ी समस्या है कैंसर को लेके, उस तरह की चीज़ों को भी हम हैंडल कर पाएंगे. हमारे साथ और भी कैंसर वॉरियर्स हैं. तो जैसे कि हमने सोशल स्टिग्मा की बात की और उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं. तो मैं बात करना चाहूँगा सीमा जी आपसे. हमारे साथ सीमा योगी हैं जो काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़री हैं और उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, सारी चीज़ों से निकल के बाहर आई हैं और उनके पास काफ़ी कुछ ऐसा है बताने के लिए जो हम सबको जानने में काफ़ी नई चीज़ें होंगी और हमें एक समझ पैदा होगी कि कैंसर से लड़ाई कैसे की जाती है और किस तरह की हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है. सीमा योगी जी. जी थैंक यू. एक्चुअली कैंसर डायग्नोस्ड हुआ मुझे बहुत देर से, स्टेज 3 B मल्टीपल माइलोमा. तो स्टार्टिंग में मुझे एक हार्मोन इंक्रीज़ हो रहा था, लैक्टेशन जो मदर में होता है वो, और एक कॉर्टिसोल. तो इन दोनों से डॉक्टर का कहना था कि एक सिस्ट बन गया है सर में, क्योंकि कंटिन्यूसली मुझे वोमिटिंग और हेडेक रह रहा था. तो सभी तरह के टेस्ट हर रोज़ होते थे. पर 2011 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये सब चलता रहा. और दिसंबर लास्ट वीक में जब मेरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगी, तब हमने डॉक्टर को बताया तो बोले कि हीमोग्लोबिन कम है इनका, इसलिए स्वेलिंग आ रही है और हेडेक कम नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो हम इनका ऑपरेशन करके सिस्ट निकाल देते हैं, वरना ये बड़ा होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा और इनकी रोशनी भी जा सकती है. तो हम डर गए थे. हमने जैसे डॉक्टर ने कहा वैसा किया. तो मेरा सीटी स्कैन करवाया
करवाने से पहले एक टेस्ट होता है क्रेटिनाइन और यूरिया का। तो क्रेटिनाइन था मेरा 14 एंड यूरिया था 267। तो डॉक्टर ने कहा कि ये लड़की ज़िंदा कैसे है, इतना सब कुछ, मतलब ये तो रीनल फेलियर है, तो इसका इमिडिएटली डायलिसिस होगा। तो उसी दिन मुझे एडमिट कर लिया और इतने दिनों में मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी, बिल्कुल पैर लास्ट टाइम तो मैं व्हील चेयर पर गई जब एडमिट हुई उस दिन। तो डायलिसिस हुआ और बायोप्सी की गई तो बताया कि मल्टीपल माइलोमा है और अगर इनकी बॉडी ने मेडिसिन एक्सेप्ट की तो ये 6 मंथ तक रहेंगी, अदरवाइज़ 3 मंथ में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये है प्राइवेट हॉस्पिटल का एक जो उन्होंने मुझे बताया जिस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइंस होती हैं उससे आम आदमी डर ही जाता है कि इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा ऐसे। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, पता किया कि माइलोमा की डॉक्टर कौन है दिल्ली में। तो पता लगा एम्स में डॉक्टर ललित हैं, तो उन्होंने वहाँ बहुत मुश्किल से उनसे अपॉइंटमेंट लिया, जैक लगा कर थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम एडमिट नहीं कर सकते, हमारी तरफ से केवल एक इंजेक्शन होता है बोटिज़ोम, तो वो दे सकते हैं बस, एडमिट यहाँ अभी बेड नहीं है, आप नेफ्रो में पता कर लीजिए। नेफ्रो में भी बेड नहीं था, तो बहुत मुश्किल से फिर प्राइवेट वार्ड में एक रूम मिला, तो मैं वहाँ एडमिट रही 2.5 महीना और थ्राइस इन वीक डायलिसिस चलता था, साथ में प्लाज्मा चढ़ता था। तो इतना सब, मतलब बहुत वीक हो गई थी, मैं चल भी नहीं पाती थी, पैर उठाना तो मुश्किल, मतलब करवट भी नहीं ले सकती थी, तो मुझे सब उठा उठा के रखते थे एक पोटली की तरह। तो डॉक्टर जब आते थे मैं उनसे पूछती थी, डॉक्टर मैं कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि झुंझला गए वो, मैं रोज़ पूछती थी क्योंकि, तो बोले कि आप जितना बच गई हैं वो बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती आप। तो उस दिन मैं पहली बार रोई मैं। और इससे पहले जब मैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में थी, जब मुझे डायग्नोस्ड हुआ था, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस रीनल फेलियर है और मल्टीपल माइलोमा है, कैंसर है। उन्होंने नहीं बताया, मेरे भाई ने बताया था। तो कैंसर है, मतलब मैं जब 5 साल 5th 4th में पढ़ती थी तब मैंने टीवी में देखा था कि कैंसर का इलाज संभव है। तो तब मुझे फिर जब हुआ तब मुझे डर नहीं लगा कि हाँ इलाज संभव है, मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है। और रीनल फेलियर है तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डायलिसिस में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बीपी हाई होना, पेन होना। तो और जब एम्स में डॉक्टर ने कहा कि आप इतना ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगी, तब मुझे लगा इतना डिपेंडेंट होना लाइफ में, जीना मतलब बहुत मुश्किल है, मैं नहीं रह सकती ऐसे। तो तब मुझे बहुत रोना आया। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम कर सकती हो, इसमें क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाना है कि तुम चल सकती हो। तो मैं 2012 में मार्च में होली थी, उसके बाद मैं घर आ गई डिस्चार्ज होकर। उसके बाद डायलिसिस चलता रहा थ्राइस इन वीक। और उसके 15-20 डेज़ बाद में नवरात्रा जब आते हैं, उसका मैंने खाना बनाया। मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी घर आने के बाद, चलने लगी थी। और जब चलकर मैं हॉस्पिटल जाती थी तो डॉक्टर पूछते थे तुम खुद चल कर आई हो, अपने पैरों से चल कर आई हो? तब मैं कहती थी कि यस डॉक्टर, मैं खुद चल कर आई हूँ। कि वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इस तरह चलता रहा। फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसके लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टेस्ट होते हैं बहुत सारे। तो मैं एक दिन डायलिसिस करवाती थी, दूसरे दिन एम्स जाती थी, फिर तीसरे दिन डायलिसिस करवाती थी, फिर एम्स जाती थी। वहाँ पर जो डेट्स मिलती थी उस हिसाब से मुझे अपना रूटीन डिसाइड करना पड़ता था। तो उसके बाद 2014 में जून में मेरा बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ और मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी वहाँ 25 डेज़ तक। और उसके बाद 2016 में जनवरी में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मेरे फादर ने मुझे किडनी दी। तो इस तरह से पूरा, बट यह है कि फैमिली का इतना सपोर्ट था बहुत ही ज़्यादा। यहाँ 2 भांजियाँ हमारी पढ़ती थी, सिस्टर इन लॉ की बेटियाँ। तो जब एम्स में लाइन लगनी होती है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो जाकर लाइन में लगती थी, मैं घर से बाद में जाती थी। और
फिर डॉक्टर को हम लोग मिल के दिखाते थे। तो और विल पावर जो है आपकी, वो आपकी फैमिली से आती है। अगर वो आपको बीमार नहीं समझते हैं और कमज़ोर नहीं समझते हैं, तो आप सोचते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। और ये कि बीमारी जो है किसी को भी हो सकती है, कोई एक चुन कर नहीं आती कि हाँ इसी को होना है। ये शरीर है, किसी को भी हो सकती है बीमारी। तो सपोर्ट पूरा फैमिली का था एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सभी तरह से। तो और तो निश्चित रूप से सीमा जी, आपकी कहानी ऐसी है जो सभी के लिए प्रेरणादायक है कि इतनी इस तरह की बीमारी, जी थैंक यू। और आपने जिस तरह से फाइट किया, जिस तरह की हिम्मत दिखाई, और किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सारा कुछ हुआ एंड यू आर ऑन योर ओन, और आप इतनी मेहनत और हिम्मत के साथ आज भी हैं, ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। और मेरे ख्याल में और जो आगे अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को इस तरह की बीमारी कैंसर होती है, तो वो आपकी हिम्मत से हिम्मत ले सकता है और जी, इस बिल्कुल। बीमारी को डिफीट दे सकता है। जी बिल्कुल। मैं एम्स में जाती हूँ, जब भी वहाँ पेशेंट्स होते हैं तो मैं उनसे भी बात करती हूँ, तो उन्हें भी हौसला ही देती हूँ। इवन जब नेफ्रो में जाती हूँ दिखाने, तो कई पेशेंट सोचते हैं कि किडनी ख़राब हो गई हमारे, मतलब आप देखिए यंग लोग जो हैं उनकी किडनी ख़राब हो चुकी हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो रोते रहते हैं वहाँ कि कौन किडनी देगा, कौन देगा। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आप खुद दे सकते हैं और इसके बाद नॉर्मल लाइफ हो सकती है। कितने ही जानकार हैं जिनके मतलब अब बच्चे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है लाइफ ख़त्म हो गई है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत अच्छी लाइफ होती, नॉर्मल लाइफ होती है, जी, ऐसा जी, नहीं है। जी। जी So thank you, Seema ji, for your expression. Now moving on, now we'll talk to Captain Ashima Agrawal, who has been a professional. She is an entrepreneur. She runs a business. And as I was talking to her just before the program, despite detection of cancer, she was all active and she was performing all her responsibilities and running a business. She looks after, she is a microbiologist, and she looks after the organic food aspect of Fab India. And she was in army. Maybe that split would have come from the army. She was in the short service commission and served the Indian army. And thereafter, she fought with this disease, and she is here and running a complete business and a source of inspiration for so many people. So, Ashima ji, we'd like to listen from you your story. एक्चुअली स्नेहा की सुन के कहानी और सीमा की सुन के मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी। जितनी मेरे को जो हुआ और मुझे जो सपोर्ट मिला और जो मुझे पता था, खुद अवेयरनेस थी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मेरी जर्नी एक्चुअली कैंसर से स्टार्ट हुई है 2016 में, बिकॉज माई मॉम गॉट डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। she had a treatment, वो क्योर हुई, लेकिन less than a year it again came back. And this time when it came back to her, it came in multiple places. She still underwent her treatment, but November 18 I lost her to cancer. She finally, so I saw her at every stage of cancer. Also maybe by virtue of शायद मैं जिस line से हूँ, I'm a microbiologist, there are certain things which I'm already aware of, and I keep myself medically aware also of things. उस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे चीज़ें पता है, मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ एंड सुनती हूँ। मम्मी को देखा पूरा, तो वो जर्नी मुझे थी। मेरे केस में जो एक्चुअली डॉक्टर मीनू ने बोला है कि कोविड के केस में, मेरे केस में कैंसर का एक्चुअली वही केस हुआ अप्रैल मार्च में जब कोविड स्टार्ट हुआ। आई वॉज सपोज टू गो फॉर माई एनुअल चेकअप। कोविड स्टार्ट हो गया, आई टुक अ बैक सीट कि कौन अभी जाएगा, कौन करेगा कोई। लेकिन क्योंकि मम्मी का था तो ये था कहीं दिमाग में कि मेडिकल है। मेरे को जब जून में कभी एक लंप अपना फील हुआ, पहले इग्नोर करा मैंने भी इनिशियल में, उसके बाद में महीने 2 महीने बाद वो दोबारा फील हुआ। देन देयर वाज अ वेरी माइल्ड पेन। was talking to a friend of mine, तो she was like, why haven't you gone to the doctor? गई उनके पास इमीडिएटली गायनाकोलॉजिस्ट। उन्होंने मेरी लकीली लाइक जैसे अनुराधा हैं वैसे आई हैव अ वेरी वेरी गुड गायनाकोलॉजिस्ट टू गाइड्स मी वेरी वेल। तो उनके पास गई, उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, मैमोग्राफी कराते हैं। अगले दिन करा के और ये सब चीज़ें मैंने खुद करी हैं। मैं वेरी फ्रैंकली बोल रही हूँ कि जिस चीज़ में मैं खुद केपेबल करने के लिए हूँ, मुझे कोई साथ में नहीं चाहिए। मैं शुरू से अपना काम सब खुद करती हूँ, तो मैंने वो सारा अकेले गई हूँ करा। जब ज़रूरत थी, यस हस्बैंड का सपोर्ट है, मदर इन लॉ हैं सबके साथ में, तो आई डिड दैट। हुआ डायग्नोस हुआ, वो उन्होंने कराया, उसमें निकला।
देन आई वाज डायग्नोज पहले मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर गीता हैं, शी इज़ द ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर मीनू के साथ ही हैं वहीं पे दोनों हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे फिर हुआ, फिर बायोप्सी उन्होंने बोली, वो कराई पूरी। आई थिंक मेरा 10 दिन के अंदर जब गई हूँ उसके बाद से ये हो गया था, हाँ मेलिग्नेंट है, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह आई। बट ये था कि क्योंकि लंप का साइज मेरा पकड़ा गया टाइम पे, सो इट वाज लाइक अ स्टेज 1 और 2 के बीच का था, लेकिन क्योंकि लंप थोड़ा बड़ा था। लेकिन मेरा जो कैंसर था वो ग्रेड 3 था, विच वाज अ हाईली मेलिग्नेंट टाइप। तो डॉक्टर का सजेशन था कि सर्जरी करा लो, पहले सर्जरी होगी, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे कीमो है, क्या करना है, रेडिएशन एंड ऑल। हाँ, उसमें ज़रूर एक चीज़ का ये था, आई गॉट फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, बट लाइक जैसे डॉक्टर मीनू बोलती हैं कि पेशेंट को साइड में बिठा दिया जाता है, मेरे केस में उल्टा था। मेरे केस में ये होता था, कई बार मैं डरती थी, बट आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद माई हस्बैंड। हम दोनों ही पढ़ते थे, खुद अपने आप ढूंढते थे, देखते थे, फिर डॉक्टर से बात करते थे, डॉक्टर मीनू से, डॉक्टर गीता से पूछते थे, बहुत क्वेश्चंस पूछते। हमने शायद इतना ज़्यादा पूछा है कि वो उनको भी लगता था कि ये तो पहले ही पता करके आए, पूछ के आए हैं, सारी चीज़ें ढूंढ के आए हैं खुद। तो वो चीज़ हमने करी। तो उसमें जैसे मेरे केस में लंप था, तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि अगर मैं मैसेक्टमी कराती, मैसेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लंपेक्टमी। ये तो डॉक्टर मीनू ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं, या डॉक्टर अनुराधा, कि लंप रिमूव करेंगे तो शी सेड लंप रिमूव करेंगे तो आपको रेडिएशन करवाना पड़ेगा। अगर आप मैसेक्टमी करवाते हो तो देन आपका जिस टाइप का है, यू विल हैव टू अंडरगो कीमो, बट यू विल नॉट हैव टू अंडरगो रेडिएशन। I decided at 48 I'm okay getting a mastectomy, because I had seen my mom undergoing radiation more than once, and उसके जो effects थे, I was like okay, मुझे नहीं कराना, I am okay at this age at doing a mastectomy, and मुझे कोई reconstruction नहीं कराना, because एक जो factor है बहुत ज़्यादा कैंसर के संग स्टिग्मा है, is cosmetic। बालों के केस में था, I had waist length hair, I've always had that। मम्मी को क्योंकि मैंने देखा था, एंड आई न्यू कीमो शुरू होते ही मेरे बाल गिर जाएंगे, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने मेंटली दिमाग में जब हुआ डायग्नोज, सोच लिया कि मुझे अपने बाल डोनेट करने हैं। ट्राई टू फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस। पहले ही मैंने बाल अपने पहली कीमो से पहले जाके बाल अपने चॉप करवा लिए कि मेरे को ये वाले बाल, एंड फाइनली आई डोनेटेड इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो करके, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें कई बार ना हम लोग ये चीज़ सोचते नहीं है, जैसे अवेयरनेस में है, मालूम है हाँ मुझे कैंसर हुआ है, आई नो ये चीज़ होगी, तो क्यों नहीं किसी और की, अगर मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे विग नहीं बनानी, मुझे अपने बालों से कुछ नहीं करा। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन। पूरी ट्रीटमेंट अंडरगो करी। जैसे मीनू, आप डॉक्टर मीनू कह रही थी कि मैं जब बात भी कर रही थी, तो मैं कीमो के लिए जब पहले सुबह जाती थी, पहली बार जब मैं गई तो मैं अकेली गई थी। नर्स भी मेरे को देख के हुई, आप अकेले आए हो? मैंने कहा ऐसा है, मैं चलती फिरती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, साइन मैंने करना है। मेरी कॉर्पोरेट, लकीली आई हैड सपोर्ट फ्रॉम होम, कंपनी में जहाँ काम करती हूँ मैं, आई हैड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एंड ऑल। ऐसे जब मेरे को ही सब कुछ करना है, तो मैं किसी को साथ में लाके बिठा के 3 घंटे क्यों उनका बर्बाद करूँ? और करना किसी ने कुछ नहीं है। कीमो मेरी होनी है, मेरे को इंट्रावीनसली दवाई मिलनी है, तो मैं पहले गई। उनको समझ आ गया, हाँ यस, जिस टाइम ज़रूरत थी, शाम को जब जाना होता है वापस, उस टाइम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हस्बैंड तब आ जाते थे, उनको फ़ोन करती थी आप आ जाओ। लकीली एक एडवांटेज था, हमारा घर बहुत पास था हॉस्पिटल से, तो वो था, तो वो आ जाते थे, तो हम करते थे। उसके बाद में हॉस्पिटल में बैठ के भी मैं तो काम करती थी अपना पूरा, क्योंकि मैं करूँ क्या सारा दिन, 3 घंटे वहाँ, 4 घंटे मुझे 5 घंटे बैठना है। तो मतलब आपने किसी भी स्टेज में, जब तक आप व्हेन यू वर फाइटिंग विद द डिजीज, यू कंटिन्यूड वर्किंग? आई यूज्ड टू सिट, मैं तो वही, मैं कई बार मजाक उड़ाती थी, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑफिस के कुलीग्स मजाक उड़ाते थे कि तुम कीमो कराने गई हो कि तुम वहाँ बैठ के गप्पे मार रही हो लोगों से। बट आई वाज लाइक, मैं बैठी हूँ, मेरे हाथ में कीमो एक साइड में लगी हुई है इंट्रावीनसली, तो मैंने करना क्या है? मैं काम कर लूँ साथ में, मेल्स अपनी फ़ोन पे, आईपैड पे करके अपने जितनी टीम से काम करना होता था, आई यूज्ड टू डू इट। और सबसे बड़ी ज़रूरत बात थी, मुझे खुद को शायद उस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ नहीं भी करती तो मैं खुद शायद एक डिप्रेशन में चली जाती। ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं रोई हूँ, मुझे डर नहीं लगा, मुझे सब बहुत दुख हुआ था। मेरे बाल मुझे बहुत प्यारे थे, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत दुख है उसके लिए, बहुत रोई हूँ। लेकिन ये क्लियर था मेरे को पता मेरे बाल खराब गए, आई विल गो बॉल्ड आफ्टर अ पॉइंट, एंड मेरे बाल वो बेकार हो जाएंगे, तो माइट एज वेल कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मतलब करके, दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली डिड इट दैट वे, कि हाँ आई नीडेड दैट। एंड जितना मैं खुद, यस सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा घर से, डॉक्टर्स से बहुत अच्छा। मेरे केस में एक स्टिग्मा और था, मेरा बेटा 12th में था। आई गेट अ क्वेश्चन, पीपल यूज्ड टू आस्क मी व्हाट साइमा सेड। आई डोंट वांट सिंपैथी। मेरे से लोग पूछते थे आपका बेटा कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पे। मेरी मदर इन लॉ से पूछा लोगों ने, अर्नव ने कैसे रिएक्ट। मैंने कहा उसको क्यों रिएक्ट करना है किसी तरीके से,
मदर को है कैंसर, उसको मालूम है, शी इज अंडरगोइंग हर ट्रीटमेंट, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी 12th थी, कोविड टाइम था, अपनी 12th थी, इंजीनियरिंग में ही इज गॉट एडमिट. व्हाई डज ही हैव टू गेट इम्पैक्टेड इन एनी वे? आई एम नॉट डाइंग. ठीक है, बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी. यस, जहां मुझे जरूरत है उसकी, वो है मेरे पास. उसके अलावा उसको एक बार 18 साल के बच्चे को उसमें उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं मर नहीं रही हूँ, आसमान नहीं गिर गया, सिंपल एज दैट. तो वो था. तो अब ये ख़ास बात ये ना कि इस तरह की स्पिरिट होनी चाहिए बीमारी से फाइट करने के लिए, और उस तरह का हौसला होना चाहिए. जो जितने भी हमारे कैंसर वॉरियर्स हैं, सबकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि किस तरह से हम सिर्फ कैंसर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरह की हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तो किस हौसले के साथ उसको फाइट करना है, ये आज हम सब ने सुना और देखा, जितने भी यहाँ पे कैंसर वॉरियर्स हमारे सामने आए. यहाँ पर मैं डॉक्टर आराधना आपसे बात करना चाहूँगा. हमने इन सब लोगों की स्टोरी सुनी, इसके आधार पे आप हमको क्या और ऐसी एडिशनल चीज़ें बता सकती हैं जो हम कहें कि अवेयरनेस के लेवल पे या किसी भी तरह से जो सबके जितने भी ऑडियंस यहाँ पे सबके जानने लायक हो, कि अगर खुद कभी वो इस तरह की परेशानी में आते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो क्या कुछ उन लोगों को समझना चाहिए और करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम रियली अमेज्ड टू लिसन टू दीज स्टोरीज सो मच. दे हैव सफर्ड बट दे हैव फॉट बैक, और टू गिव टू सोसाइटी. सबके अंदर एक फीलिंग है कि व्हाट कैन आई गिव टू सोसाइटी. तो मैं यहाँ पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितना भी हमने आज जो हम यहाँ पे अगर कुछ हम सीख रहे हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, एंड सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल. टू फाइट विद कैंसर वन शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग. हर तरह की आप अवेयरनेस दूसरों में फैलाएं. यू बिकम द बर्निंग पॉइंट एंड यू बिकम द टॉर्च बेरर फॉर अदर्स. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. और बाकी मेडिकल वर्क तो हम लोग कर ही रहे हैं सारे, बट हर कोई जितना आप अवेयरनेस लेते हो, और मिथ्स ना फैलाएं. मैं सबसे बड़ा एक ये मैसेज कहना चाहूँगी कि मिथ्स बहुत बुरे हैं कि ये उसको ऐसा हुआ था तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उनको ऐसा हो गया, तो ये इनको उनके पे नहीं जाएं. आप फैक्ट्स पे जाएं, स्पेशलिस्ट से मिलें, फ्रेंड्स की बात थोड़ा कम सुने. मैं तो ये कहूँगी कि फ्रेंड्स की बात और पड़ोसियों की बात कम सुने, और एक्सपर्ट्स की बात सुने, और हेल्दी लाइफस्टाइल. जैसे कहा भी, कई लोगों ने अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और फिर डॉक्टर का कंसल्टेशन कर सकते हैं. यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूंगी, क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल. दीज आर ऑल हैव गॉट द better effect. They have protective effect in cancers. Avoid junk food, avoid obesity. तो ये सब चीज़ों से आप हेल्दी ईटिंग करें. बाहर हम लोग बहुत कैजुअली खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोल्ड कॉफ़ी पी लिया, शुगर्स बहुत खाते हैं. तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुअली अफेक्ट कर रहा है. ऑलरेडी एनवायरनमेंट में देयर सो मच पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग. सो ग्रीन्स, पल्सेस, जो तोरी, लौकी, ये चीज़ें हमें जो सब बच्चे हंस रहे हैं बिकॉज नोबडी वांट्स टू ईट दैट. सो ग्रीन्स खाएं, पल्सेस खाएं, फ्रूट्स खाएं. एंड उसमें कहीं आप अगर हॉस्टल में भी हैं तो फ्रूट्स खाने में कोई मेहनत नहीं लगती है. सो अर्ली एज से आप हेल्दी लाइफस्टाइल को करें. दैट विल बी द बेस्ट प्रिवेंशन. एंड एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 30 minutes a day, everybody has to exercise. तो चलिए, यंग लोगों को आपने काफ़ी चीज़ें बता दी जो ज़रूरी भी हैं, और वो इट्स लाइक हॉर्सेस माउथ. अगर आपकी तरफ से आ रही है, एक डॉक्टर की तरफ से आ रही है, तो मेरे ख्याल में उसको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए यंगस्टर्स को. सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स. जी डॉक्टर वाली. जो व्हाट आई वेरी कॉमनली सी है, जितनी भी यंग जनरेशन आती है ना, सो उनसे कभी भी बात करो ना, इंट्रैक्शन करो, तो उनका होता है ना कि मामा you have to be cool, है ना. Cool is your word, है ना. And what does cool mean for you? Cool means smoking, है ना. एक अच्छा सा ब्रांड हाथ में होना चाहिए. Cool means those हुक्का bars, है ना. पार्टी में साइड में वो हुक्का, वो फ्लेवर्ड हुक्का, that is cool, है ना. So what you have to understand, बच्चे, disease is not cool, है ना. We have that concept of cool that is being propagated by, what I will say again, are Bollywood heroes. So that is not cool. And when somebody has disease is never being cool. Being cool is fit. Being cool is physically active. At the end of the day, if you are physically active, you are fit, that is much more being. That should be the new definition of cool, that which you should spread. Completely agree with you.
So now moving on to this last segment of the program, I would like to take up the questions from the audience, from the teachers and the students who are there. Yeah. Thank you for making us aware about the vaccination of the cervical cancer. I just wanted to know more about it. Like, where can we get it? Is it available in all hospitals? Like, is it available? Yeah, it is freely available in different shops, and you can just go and consult a doctor. Pediatricians also prescribe that, and gynecologists also prescribe. So just go and get a, just a routine just discussion about it, and you can get a prescription. You can take it. There are 3 doses. It's a 3 doses, and now one time has also come up in India. So single dose has also come up. Okay, so any other question from this part? Yeah. Ma'am, last year my mother got me vaccinated with the breast cancer vaccination. It was around 7,000, 3 doses. It was in total 7,000. We awaited a house help also, but her response to it is ki it's my 2 months salary. So what I'll eat after that. So we are talking about awareness. I guess I'll do that part. I can help her with a 1 month salary. Like we contributed her ki nahi, this is important, you have to do. But what about a lot of people? Like awareness is step 1, but the step 2 is getting them vaccinated. So beta, I'll answer this question. One you said is breast cancer vaccine. I think there must be some confusion. There is no breast cancer vaccine that we have. So the vaccine which you are talking of must be cervical cancer vaccine only, and that is what used to cost approximately 7,000 for 3 doses, because 2,000 rupees each dose. है ना? I was having some media conference one of those days. I still remember one of those reporters, only somebody from the media, stood up, and I was also talking about this vaccine only. And he stood up and he told me कि मैम आप कैसी बात कर रहे हैं, है ना, हमारी देश में इतनी गरीबी है और मेरठ में आप देखो लोगों के पास, आप जो बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कितने लोग ये वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं, है ना. What you have to again come back to, and what I had to say is that God forbid if tomorrow हमारा क्या disease, हमारा mindset क्या है. So ठीक है, there is a different population, but हमारा mindset क्या है, I can go out and have a dinner and spend 5,000 rupees. I can go an evening out with my friends and really have a cool time. I can buy a new dress. शादियों में हम कैसे spend करते हैं, because that becomes your social status statement. But God forbid if somebody has a disease, जो basic test होंगे ना cervical cancer के, an MRI of the pelvis will cost you much more. So it is high time we spread awareness that investing in health prevention, in prevention of disease is much more meaningful than investing in treatment of disease. And then yes, you are very right about a particular segment who may be aware, and then it comes to, it might be their 2 months salary, but 3 months salary. But that is also possible. There are ways to help them out. If I mean, how many of us are there? How many of us have our housemates? We can just take simple steps. We can talk to the right people. It can be made available at much less rates. It can be. When we go for mass vaccination, when we talk to the companies at much lesser rates, it can be made available. We can, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, हम अपनी एक मेट का ही वो ले सकते हैं, उसकी 2 बेटियों का ले सकते हैं. डॉक्टर वालिया, जैसे अब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जैसे स्नेहा फाउंडेशन ही है, तो जो भी एनजीओस इस एरिया में काम कर रहे हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं जिनको ज़रूरत है. और पीछे दिल्ली गवर्नमेंट में देयर वाज फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव आल्सो being done for the younger girls, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ड्राइव भी था. लेकिन डॉक्टर वालिया, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जैसे इस सवाल से बात आई कि एक ख़ास तरह जैसे सर्वाइकल कैंसर में आपने कहा कि वैक्सीन है, ब्रेस्ट कैंसर में वैक्सीन नहीं है, ये क्यों है, इस तरह का अंतर क्यों है? A very important question. What we have to understand is cancer is not one disease. There are more than 200 different types of cancers, and जितना भी all said and done, जितना भी science advance कर जाए, we still do not know the answers to all the questions which are there, है ना. Like we had our experience with COVID, है ना. So COVID आया, हमें पता लगा, fortunately I'll say it was because of an infectious agent, a coronavirus, and because हमें agent मालूम है किस वजह से है, you can develop a vaccine for that and you can prevent it, है ना.
So, cervical cancer we know is because of a virus which is known as human papilloma virus. Once you know it is because of human papilloma virus, you can develop a vaccine for it. है ना? Breast cancer we just know the risk factors. अनफॉर्चुनेटली कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है. हो सकता है उसकी वजह से होता ही नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर इज मोर आर लाइफस्टाइल रिलेटेड. सो लाइफ, एक वैक्सीन तो एक आसान सोल्यूशन है ना. वायरस को मारना है तो वैक्सीन लगा ली, दैट इज ईजियर. बट अगर ब्रेस्ट कैंसर को कॉन्कर करना है तो एक लाइफस्टाइल में मेजर चेंज करना है. एंड लाइफस्टाइल में मेजर चेंज करना इज नॉट दैट ईजी फॉर एवरीबडी पुट टुगेदर. सो दैट इज द रीजन वी स्टिल, यस वी डू नॉट नो द इटोलॉजिकल एजेंट, कोई एक इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है. एंड इट टिल दैट टाइम लाइफस्टाइल्स प्रोबेबली विल हैव टू बी चेंज. डॉक्टर आराधना ने भी वही बात कही कि लाइफ स्टाइल ठीक करनी होगी यंग लोगों को ज़्यादा. जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज. जी. कोई और सवाल? हाँ, सुकृति. चलो, या मैम मेरा आपसे क्वेश्चन तो बाद में, सबसे पहले तो एक मेरी आपसे मतलब जैसे स्टोरी है मेरे से भी एक रिलेटेड है. मैं मतलब वो था जब उतना छोटा था कि जिसके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनती थी कि मैं वो उस समय क्या हुआ. बस सिर्फ मेरे दिमाग में एक वो मंज़र अभी भी है कि मैं अपने नानी के यहाँ पे था. मेरे नाना को कैंसर था, तो वहाँ पे खाना पक रहा था और मैं और मेरे नाना और मेरा छोटा भाई था जो वो उस वक्त खाना खा रहे थे. तो सडन उनको अटैक आया और वो उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई. तो ये एक मेरा इंसिडेंट मेरे दिमाग में अभी तक है और उस समय कुछ नहीं है. तो इस बारे में मैंने भी कभी बात नहीं करी कि मेरी मदर को शायद दुख हो या इस वजह से. तो मैं आज आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि हाँ कैंसर एक दूसरे को फैलता भी है, तो जैसे हम खा रहे थे खाना या मेरी मदर, उनको अलग से ट्रीट नहीं किया जाता था कि हाँ उनको कैंसर है तो अलग रखें अलग खाएं, जबकि उनको शायद आई थिंक इस वाले पार्ट में था और वो साफ दिखता था कि हाँ कैंसर है. तो क्या वो हम लोग को अब अफेक्ट कर सकता है? अभी नहीं किया है अभी तक, शायद करेगा. So, बच्चे, nowhere in our discussion we wanted to say that cancer is a communicable disease. Cancer is not a communicable disease. Cancer नहीं फैलता. By staying in close proximity to cancer patient doesn't mean that you will have cancer. So, what we talked about was inherited factors, genetic factors, that was a different thing altogether, and that too in a small percentage. So, cancer is not COVID. This same question was asked to me a few days back and I said अगर cancer भी फैलता होता ना, तो जैसे COVID में आपको मिलते थे ना डॉक्टर सारे वो कोट वो पहन के वो घूमते थे, तो हम कैंसर वार्ड्स में भी सारे डॉक्टर्स और नर्सेज वैसे ही घूम रहे होते. So, we are the first people who are in contact with cancer patients. So, cancer fortunately is not a communicable disease. Cancer will not spread by sharing utensils, by sitting with cancer patients, by living in the same house, by sleeping on the same bed. No, it will not spread like that. Hello, my question is related to the prevalence of PCOD and PCOS, and I'm sure you know that a lot of girls are getting it very early on these days, and in a lot of cases what I have heard is that the DHEAS levels tend to rise up above the normal ranges. Is it a possibility that these people who have high DHEAS levels are more likely to get cancer? No, I don't think so. DHEAS, but indirectly, if you see the why DHEAS is is raised, it's the complicated thing. So I will just simplify it in a way, like you are eating junk food, you're eating high calorie food, it is getting absorbed from your intestine, getting high calorie, high sugar in your blood. And from the blood, the insulin sensitizer, the insulin is also not that sensitive to, to burn that sugar. And a lot of different other hormonal changes are happening in your blood, and that's how the, the polycystic ovary happens, and that's how the DHEAS increases. This DHEAS is basically male hormone. So this will cause the scalp hair loss, the beard, the facial hair are growing, scalp hairs are falling, and that way. So so from where the thing started, it started from your mouth, started from the the high calorie eating and not exercising. So it's in a major way, it's a lifestyle disease, the polycystic ovary and the disturbances of hormone. And that fat which is increasing in the body is a stimulant for the breast cancer as well as for the uterine cancer and many other cancer, intestinal cancer. So fat in the body, you have to definitely cut it down. You have to think, you have to, you have to
understand that why we are saying this. Why? So that fat in the body is not silent, that we have to understand. It is stimulating. It is giving those estrogen stimulation. I think I'm Basically, not- your lifestyle risk Yes, factors are the same. yes, that is So the a risk lady who factor. has polycystic ovarian disease will have more of fat, will have more of estrogen secretion in her body. So the risk factors are the same, and that is the reason that you will have more of cancers in these patients. Yeah. So moving on, any other question or? Yeah, yes, sir. Ma'am, you said that the trend is different in India vis-a-vis the world. यहाँ पे लेडीज को ज़्यादा होता है ओवरऑल वर्ल्ड में जेंट्स को. इसका क्या कारण समझते हैं आप? You asking me? So basically I already answered. I think हमारे यहाँ पे ladies को ज़्यादा एक तो ignorance है ना, being illiterate, then being a taboo. So many times you see कि breast cancer है, breast में lump है, वो इतना शर्माती हैं, they are afraid, मतलब वो family में किसी से बात ही नहीं करना चाहती, किसी और से बात ही नहीं करती, मतलब शर्म की वजह से या किसी भी वजह से दे डू नॉट कम फॉरवर्ड एंड से कि मेरे ब्रेस्ट में लंप है या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है. फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर में अगर ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, दे विल नॉट गो आउट एंड ओपनली टॉक, एंड दे आर not many of them will be like her, like Ashima, that who will go out to the doctor and go to the hospital on their own. They will think so many times. And another important thing I said ना, हमारे लिए ना वी इंडिया, आई थिंक एक तो इंडियंस में ये टेंडेंसी है, सेक्रीफाइस मेक्स यू फील बेटर, मेक्स यू फील गुड, एंड फॉर लेडीज़ ऑल द मोर, है ना. जो आप जितना आप वो सेक्रीफाइस करते हैं, आपको लगता है कि आप शायद उससे बेहतर माँ बन रहे हैं, बेहतर ये कर रहे हैं, और वो सेक्रीफाइस में ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड के ये इम्पॉर्टेंट है. कितनी बार हमारा एक नॉर्मल ट्रेंड है, इवन इन द, आई डोंट नो, डॉक्टर आराधना के साथ है, हम कितनी बार कहते हैं कि मार्च में ना आपको पेशेंट कम आते हैं दिखाने. क्यों? क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सबके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इवन इफ दे हैव अ प्रॉब्लम दे विल नॉट कम. और जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे, यू विल हैव सो मेनी लेडीज कमिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स. व्हाई? बिकॉज 2 महीने एग्जाम्स चल रहे थे तो वो नहीं आए. सो एग्जाम्स हैव अ लॉट टू डू विद दिस. So there is a more societal problem than the disease related issues. कैंसर डिस्कस नहीं करते. मैंने अपने घर में देखा है, मेरी आज मेरे फादर से लड़ाई होती है इस चीज़ में. माई मदर वॉज अंडरगोइंग, देयर वर इनफ थिंग्स जो मेरे से, डिस्पाइट मी, माई ब्रदर वॉज इन द US, मैं यहाँ थी, वो मेरे से नहीं डिस्कस करते थे. तो मुझे उस चीज़ का गुस्सा आता है अभी भी कि वो क्यों नहीं मेरे से करते थे. हम लोग बात नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में. आज मुझे अगर कैंसर है, मैं 4 लोगों से बात नहीं करती, शायद इस डर में कि वो मुझे दया दिखाएंगे. नो, वही लाइक व्हाट साइमा सेड, मुझे वैसे भी जैसे मैं अपना करती थी, आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू बी ऑन जूम कॉल. मेरे बाल नहीं थे, आई वाज बॉल्ड, बट आई वाज सिट ऑन द जूम कॉल विदाउट एनीथिंग, एंड मेरे से मेरा ये था, आप देख लो, मैं ऐसे ही बैठूंगी, योर प्रॉब्लम, आप आदत डाल लो मेरे को ऐसे देखने की. तो वो वाली चीज़ें हम बात नहीं करते इस बारे में बहुत सारी बार. हाँ, डॉक्टर बाला. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक फूड हैबिट्स, बट एक्सरसाइज या योगा जो अभी बात की गई, कि उसमें क्या, इसमें कोई स्पेशल तरीके का योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप अपने को इन बीमारियों से दूर रख सकें? हाँ, तो ये जैसे कि 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज जो हेल्दी रूटीन कहा जाता है, 5 टाइम्स, एटलीस्ट मिनिमम 5 टाइम्स अ डे. और इसमें आप कोई भी तरह का योगा कर सकते हैं. योगा आपका सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, लाइक यू नो यू कैन कंबाइन द थिंग्स, बट यू शुड बी मूविंग, एंड दैट creates the good endorphin hormones and good hormones, and you know avoid collecting the fat in the body, and then ultimately you tend to get a healthy lifestyle with that. It's a yoga is a way of living, exercising is a way of life. Ji. So that So moving on, we can take one question at the most because we are running out of time. Yeah. मैम, हमने अवेयरनेस की भी बात कर ली है और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है उसके बारे में बात कर लिया है, लेकिन जो एक जो सोसाइटी के सेगमेंट की बात हमने की है, तो उसके लिए सबसे आसान है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना.
और वहाँ पे आज भी सबसे पहली बात जो हमने की थी कि सही डॉक्टर मिलना वो भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। मेरी मम्मी खुद जो है वो हमेशा बीमार रहती हैं किसी ना किसी वजह से, तो ईएसआई की लाइंस मैंने देखी है, सुबह से लेके शाम तक हम लाइंस में लगे रहते हैं। तो मैम जो मेरा यही क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के साथ, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ मिलके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है मतलब? So it's a very vague and a big question, and she has raised a really big this thing. It's a doctor population ratio, it's a hospital population ratio. So the big policy makers should come forward for this point. Yeah. And this is an issue which is to be dealt by the policy makers, by the government. I mean, more broad-based things. Yeah. So we'll take the last question from Tanvi. So, ma'am, actually, I would like to ask two little bit small questions. One is scientific and another is psychological kind. First question is this about the relapse of the cancer. Like, cancer होता है लोगों को, फिर इसके बाद sometimes relapse also happen. So, what are the chances of getting cured of the relapse? There is a chance of getting cured of relapse also. मतलब अगर cancer relapse भी होता है तो भी cure होने का chance है या नहीं है? So again this comes to पहले तो why the relapse happens है ना, why we keep on talking about stage. Stage is what cancer मतलब what fortunately cancer is not that it overnights happen कि today you will sleep up as a perfectly normal person और एक हफ्ते बाद पता लगा कि cancer है. Cancer cells slowly they progress and sometimes the cancer has a long journey. For example, in cervical cancer, when we talk about, the journey is in months and years also. Similarly, the same goes for breast cancer. It is definitely in months. So when we say awareness, when we say screening, when we say early detection, is आप कैंसर को शुरुआत की स्टेज में पकड़ो. दैट मीन्स एन अर्ली स्टेज. वाई अर्ली स्टेज? बिकॉज जब वो अपनी जगह पे ही कैंसर के सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो बॉडी में स्पिल कम कर रहे हैं. द अर्लियर द स्टेज, better will be the cure rate and less will be the recurrences. The more cancer is detected in a later stage, for example, एक 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, तो नेचुरली वो सेल्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं और सेल्स जब वहाँ पे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे माइक्रोमेटास्टेसिस हो रहे हैं. इट इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन दे स्लीप, दे हाइबरनेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन लेटर कैन कम बैक एज recurrences. The bigger, the later the stage, more will be the chances of recurrences. And then your next question is, can recurrence be dealt in the same way? So that will also depend on whether it is a local recurrence or it's a systemic recurrence. So recurrences scientifically, medically we define into two. कि एक तो था कि जहाँ कैंसर था वहीं पे कैंसर की recurrence हुए. Local recurrences are much more easier to deal with much more curative options. But if it is a systemic recurrence, suppose the recurrence when the cancer has come back, it has come all over, it has come in the liver, it has come in the lungs, it has come in the bones, then definitely the options are very, very limited. So we are moving towards the end of the program, and we are really grateful to both the doctors, Dr. Meenu Walia and Dr. Aradhana Singh, to spend so much time with us and to create so much awareness on the issues which are relevant for each and everybody in the society. And we talked in detail about the awareness part, about the detection part, and how we can prevent cancer by taking a certain course of lifestyle, a certain course of action, which is in a way mandatory for everybody, even from the younger age, and whatever exercises are necessary to be taken up must be taken up. Whatever diet has been suggested by the doctors, so we should pay heed to that, and we should try to change our lifestyle related things if we are really interested in defeating a disease like cancer in our society. So thank you very much, Dr. Walia, Dr. Aradhana, and I'm also thankful to the other this cancer warriors and caregiver who were there in this session with us and who made such kind of expressions, who narrated such kind of a story which was really heartening and which was really educative in the sense that we could understand what all is required if
this disease has struck somebody, the kind of confidence which is required, the kind of family support is required. So all that we came to know by listening to the stories from Saima, from Sneha, from Ashima, and from Seema. So I am thankful to you all to be here with us, and I am thankful to all the audience, all the teachers and the students who have been there in this whole program, participating in the whole program patiently and receiving whatever was very important to receive for each one of us. Thank you all. Thank you.